Welcome to Galaxy Coaching Institute. My dear students, today we are going to discuss the summary of the book Flamingo of 12th class. The lesson name is Lost Spring and we are going to discuss the summary of the second part. After visiting Simapuri, Anish Jung went to Firozabad. Firozabad is a very famous city not only in Uttar Pradesh but in all over India. It is famous for its Bengal industry. Maximum 50% families are involved in Bengal making. Man may be exception, but families are not exception of it. When Anish Jung went to Firozabad, she met a boy and asked his name. The boy told his name Mukesh. Further, she asked, what will you do in your future life? He simply answered that, ma'am, I would like to drive the car in the dusty street of Firozabad. She became very happy to hear his answer because most of the persons of this city usually go in the business of Bengal making when they grow up. But Mukesh was the exception of it. She insisted him that she wants to see the locality of Firozabad. So the boy takes her in the streets of Firozabad. The streets were full of dirty water and the walls were slanting and the doors and windows were also hanging. It seemed that as if man and animals are living together since a long time here. So, she thought that really it is a very miserable life of the people who are living here. When Mukesh reaches at the house, he kicked at the door and the door wide open. Anish Jung saw a woman who was preparing food. She hid her face under the bed. When Anish Jung asked Mukesh who she was, he answered simply that she was his sister-in-law, the wife of his brother. She had to live under the order of three persons, his grandfather, his brother, and she also obeyed him also. She asked about the old lady, that who she was. Mukesh answered that she was his grandmother. But when she asked about the old man, so then the old lady answered that he is her husband and it is his karam that he lost his eyesight. He was good in the business of tailoring, but he came in the Bengal making and he lost his eyesight. But the man proudly said that I am very happy in this profession because I construct my house with my own labor and I gave education to my sons and I also taught them about Bengal making. After that, she went in the locality
of Firozabad, she noticed that there were very small rooms, there were no light and no proper air, and the little children were involving in bangle making. They had become so expert that their hands were working without light as machine do. When she asked a girl about her name, she told that her name was Sabita. But she could not tell what is the meaning of the bangles. An old lady who was working there, she told Anis Jung that this is the symbol of Suhag. And many times we had to suffer in our life that we have a very little money. It was sufficient only either for food or for bangle. But we preferred bangle because it is the symbol of Suhag. After that, she reached one conclusion that they are exploited there. The work is very hard and they are not given the proper wages. She advised the old lady that why do you not raise your voice? She said if we will raise our voice, the owner will beat us or they will complain against us in the police and the police will beat us and they will charge on us about thefts or any crime also. So what is going on? This will be going on. After this, Anis Jung concluded that there are two types of world. One world belong to the richest person or high class people such as lawyers, doctors, engineers, officers, ministers, etc. And the second type of world belongs to the poor persons as laborers, servants and many other persons. When they try to raise in their lives to the rich person, try to press them. They do not like that they get progress in their lives. This is the struggle which is going on in this world. This is the brief summary of the lesson in English. हिंदी में इस समरी को स्टूडेंट्स ऐसे कहा जा सकता है कि अनीस जंग जो राउरकेला की रहने वाली थी, सबसे पहले घूमने के लिए वो दिल्ली जाती है और दिल्ली के एक इलाके में जिसका नाम सीमापुरी था वहां जाती है और वहां वो साहिब आलम से मिलती है, ऐसा हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। वहां से घूमने के बाद वो आती है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक बहुत ही अच्छा शहर है यूपी का और ये केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है अपनी चूड़ी उद्योग के लिए। फिरोजाबाद की लगभग 50% जनसंख्या चूड़ी उद्योग में व्यस्त है। व्यक्ति अपवाद हो सकता है लेकिन फैमिली कोई अपवाद नहीं है। परिवार के लगभग सभी सदस्य चूड़ी उद्योग में लगे रहते हैं। तो अनीस जंग वहां आकर के एक बच्चे से पूछती है कि बेटा आपका नाम क्या है। वो लड़का कहता है कि मैडम मेरा नाम मुकेश है। मैम अच्छी तरह से जानती थी कि भाई यहाँ के लोगों का मुख्य काम चूड़ी बनाना ही है, जैसे बच्चा बड़ा होगा तो चूड़ी उद्योग में ही जाएगा। तो उसने फिर भी बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे, क्या काम करना चाहोगे। उस लड़के ने तपाक से उत्तर दिया कि मैम बड़ा होकर के मैं फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में गाड़ी चलाना चाहूंगा। मैम को लगा कि कोई तो है जो उस बीटन ट्रैक से एक ही लीक से हटकर सोच रहा है। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा झूठी बोल रहा हूं। उसने कहा बेटा हवाई जहाज नहीं उड़ाओगे। लड़के ने कहा मैम
हवाई जहाज मेरी पहुंच से बहुत बाहर की बात है। इससे जस्टिफाई हो गया कि जो बच्चा चाहता था तो केवल इतना ही कहता है जो वो कर सकता है। उसके बाद मैम ने उससे कहा कि बेटा मुझे अपने घर नहीं घुमाओगे? उसने कहा क्यों नहीं मैम, प्लीज साथ चलिए। तो दोनों चल पड़ते हैं और जिस गली में वो घुसते हैं तो वहां देखते हैं जो ठेलियां थी उन पर चूड़ियां, छतों पर चूड़ियां, आंगन में चूड़ियां, अर्थात चूड़ी का कारोबार पूरी तरह से फला फूला हुआ। लेकिन जो गली की हालत थी वो बड़ी ही दयनीय थी। दोनों नालियां गंदे पानी से बह रही थी और वहां पर जो घर थे उनकी दीवारें तिरछी थी और उनकी जो खिड़कियां थी वो भी हैंगिंग थी। कब हवा चले, कौन सी टूटकर कहां गिर जाए नहीं पता था। वहां की हालात देखकर मैम को ऐसा लगा कि मानो इंसान और जानवर सदियों से वहां रह रहे। खैर उसके बाद आगे चलते रहे। एक घर के सामने आकर के मुकेश रुकता है और वो एक जोर से किक मारता है एक दरवाजे पर। दरवाजा खुल जाता है। जब दरवाजा खुल जाता है तो सामने एक महिला बैठी है और वो चूल्हे पर खाना बना रही है। तो तुरंत वो अपने चेहरे पर पर्दा कर लेती है और पर्दा करने के बाद वो मुंह घुमाकर बैठ जाती है। अनीस जब मुकेश से पूछती कि बेटा ये महिला कौन है? मुकेश उत्तर देता है कि मैडम ये मेरी भाभी हैं और इसको 3 लोगों की बात माननी पड़ती है। मेरे दादा की, मेरे भाई की और मेरी भी बात माननी पड़ती है। फिर लेखिका ने कहा कि वो जो बैठी है महिला उसने कहा वो मेरी दादी माँ है। उसके बाद उसने संकेत किया एक बूढ़े व्यक्ति की ओर जिसकी दाढ़ी थोड़ी लंबी थी। उसने कहा वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? तो उसने कहा इससे पहले कि मुकेश उत्तर देता तो दादी माँ बोल पड़ी। उसने कहा वो कर्म है इस आदमी के। 1000 बार इसको कहा कि टेलरिंग एक अच्छा ऑक्यूपेशन है, एक अच्छा व्यवसाय है, लेकिन नहीं माना। उस व्यवसाय को छोड़ करके चूड़ी उद्योग में आ गया और जो चूड़ी उद्योग में पॉलिशिंग करते हुए जो कांच की डस्ट थी वो धीरे धीरे आंखों में बैठती रही और अंधा हो गया, अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। लेकिन बूढ़े आदमी ने बड़े गर्व से कहा कि भले मैंने आंखों की रोशनी खो दी हो, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं हमारे इस बिजनेस में जो अपनी ही कमाई से अपना एक घर बना लेते हैं। कम से कम मैंने घर तो बनाया, अपने 2 बच्चों को चूड़ी बनाने का हुनर भी सिखाया और जितना मुझसे बन पड़ा मैंने इनको पढ़ाया। उसके बाद लेखिका मुकेश से कहती कि बेटा मुझे यहाँ के आसपास की लोकेलिटी भी घुमाओ। तो मुकेश उसको पास की लोकेलिटी में लेकर जाता है। तो वहां वो क्या देखती है कि छोटी छोटी कोठरियां हैं, नमी वाली। न तो वहां पर हवा है न उचित प्रकाश है। छोटे छोटे बच्चे तेल के दियों में काम कर रहे हैं, लेकिन इतने हाथ उनके ट्रेंड हो चुके हैं कि चूड़ी को मशीन के चिमटे की तरह तुरंत मोड़ देते हैं। पॉलिश करने वाला पॉलिश में लगा है, टाके वाला टाके लगा रहा है, अर्थात एक्सपर्ट हो चुके हैं। वहां पर लेखिका एक लड़की से पूछती है कि बेटा आपका नाम क्या है? वो कहती है कि मैम मेरा नाम सविता है। वो कहती है अच्छा बेटा ये जो तुम बना रही हो चूड़ियां, ये उद्देश्य बनाने का क्या उद्देश्य होता है? वो कहती है कि मैम हमें उद्देश्य का नहीं पता, हम तो केवल इनको बनाना जानते हैं। तभी पास में बैठी हुई एक बुढ़िया कहती है कि मेरे पास आओ, मैं बताऊंगी। वो कहती है कि ये सुहाग की एक निशानी होती है और ऐसा समय आता है प्रत्येक लड़की के जीवन में कि एक दिन उसके हाथों पर हिना अर्थात मेहंदी लगाई जाती है, उसको लाल जोड़ा पहनाया जाता है और उसका घूंघट निकाला जाता है और उसको दुल्हन बना दिया जाता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही समय आया था। और ये जो चूड़ियां होती है सुहाग की निशानी होती है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी विकट
स्थितियां पैदा हुई कि हमारे पास मात्र इतना ही पैसा था, या तो हम खाना खा लें या चूड़ी पहन लें, लेकिन हमने चूड़ी पहनने को प्राथमिकता दी। खाना नहीं खाया, भूखे रहे, लेकिन चूड़ी पहनी। तो यह होता है चूड़ियों का महत्व। वो कहती है कि इतनी गर्म भट्टियों के पास इन छोटे छोटे बच्चों को काम कराया जाता है कि तो आप इनकी शिकायत सरकार से क्यों नहीं करते, या मालिकों के बारे में सरकार को क्यों नहीं बताते। तो कहती है कि देखो, पहली बात, अगर हम शिकायत करेंगे तो हमें ही मालिक लोग काम से निकाल देंगे। दूसरी बात, पुलिस भी हमारी बातें नहीं सुनेगी, इन्हीं की बातें सुनेगी, और हमको मार पीट कर यहां से भगा देगी या हमें जेल में डाल देगी, कोई उल्टा सीधा आरोप लगाकर। इसलिए जो ये स्थिति चल रही है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। लेखिका एक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हमारे समाज में दो प्रकार की दुनिया होती है, दो प्रकार का वर्ल्ड होते हैं। एक दुनिया वो होती है जिसमें अमीर व्यक्ति होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और लॉयर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। वो बड़ी आराम की जिंदगी जीते हैं। दूसरी तरफ वो गरीब लोग हैं जो मजदूर हैं, चपरासी हैं, और गरीब लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं। जब एक गरीब व्यक्ति समाज में ऊपर उठना शुरू करता है, अपने स्तर को बढ़ाना शुरू करता है, तो अमीर व्यक्तियों से ये बात पचती नहीं है, तो उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है कि अगर ये जरा भी आवाज उठाएंगे तो इनकी आवाज को कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है, एक लेखिका इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बता रही है कि क्या ये चाइल्ड लेबर अच्छा है। तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे यहां कानून बनते हैं, उनका ठीक तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, उनको लागू नहीं किया जाता। अगर वो वास्तव में उचित रूप से लागू हो जाएं, तो इन बाल मजदूरों को इन जगह से, खतरनाक जगह से निकालकर अच्छी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।